اردو خبرنامے میں آج بھی ہم مختلف خبریں آپ کی خدمت میں لا رہے ہیں، اور خاص طور پر آپ کو یاد ہی ہوگا کہ چیف الیکٹورل آفیسر کی جانب سے حالیہ پریس کانفرنس کے بعد جس میں کہا گیا تھا کہ غیر مقامی ووٹران کو بھی جموں کشمیر کے اندر آنے والے اسمبلی انتخابات میں ووٹنگ رائٹس ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ جموں کشمیر کے اندر ٹیمپریری بیسس پہ رہ رہے ہوں یا سروسز کے ساتھ منسلک ہو، تو وہ بھی جموں کشمیر کے اندر اپنا ووٹ جو ہے کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جموں کشمیر کے اندر سیاسی ہلچل کافی تیز ہو گئی ہے، خاص طور پر بھارتیہ جنتا پارٹی کے بغیر جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز جموں کشمیر کی ہیں ان کی جانب سے اس پر سخت تنقید کا اظہار کیا گیا ہے، اور اس پر اب کنسنسس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی جانب سے جو کل جماعتی میٹنگ بھی طلب کی گئی ہے سوموار کو 22 اگست کو، جو سری نگر میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی رہائش گاہ پر اب ایک نشست بلائی گئی ہے، کل جماعتی نشست، اس میں کون کون سے جماعت شامل ہو جائے گی اس پر ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہی مرکزی سرکار کے اس فیصلے اور چیف الیکٹورل آفیسر کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ غیر مقامی لوگوں کو بھی جموں کشمیر کے اندر ووٹنگ رائٹس ہو سکتے ہیں اگر وہ یہاں پر ٹیمپریری بیس پہ رہ رہے ہوں گے، جو سروسز کے ساتھ منسلک ہوں گے، چاہے فوج میں ہیں، سیکورٹی فورسز میں ہیں، مزدور طبقہ ہے یا طالب علم ہے، وہ جو یہاں ووٹ حاصل کر سکتے ہیں اور ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے خلاف آج پی ڈی پی کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ سہیل بخاری اور محمد یاسین بٹ جو کہ پی ڈی پی کے سینئر لیڈران میں شامل ہے، ان کی جانب سے یہاں پر آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر سے باہر نکلنے کی کوشش کی گئی، اور اس دوران یہاں پی ڈی پی کارکنوں نے احتجاج کیا، اور احتجاج کے دوران انہوں نے کہا کہ سال 2019 کے بعد عوام کے حقوق کو چھیننے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اب عارضی طور پر یہاں رہنے والے لاکھوں غیر مقامی لوگوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کی بات کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مقامی ووٹران سے متعلق فیصلے کو ہم نامنظور کہتے ہیں، اور اس کے خلاف وہ آج احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے مرکزی سرکار پر بھی الزام لگایا کہ وہ دوست دباؤ کی پالیسی اختیار کر کے جموں کشمیر کے اندر یہاں کے لوگوں کو ڈس امپاور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ایک الیکٹورل ڈیموگرافک چینج ہے اس میں بھی اب مرکزی سرکار یا بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو جماعت ہے وہ جموں کشمیر کے اندر اداروں کا استعمال کر رہی ہے۔ یہ پی ڈی پی کے ترجمان سہیل بخاری کی جانب سے آج سری نگر میں پارٹی ہیڈ کوارٹر سے نکلنے والے اس احتجاج کے دوران کیا گیا۔ حالانکہ پارٹی ہیڈ کوارٹر سے یعنی پی ڈی پی کے دفتر سے جب یہ احتجاجی مظاہرہ یہاں پر شروع ہوا تو انہوں نے لال چوک کی جانب پیش قدمی کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر موجود پولیس کے اہلکاروں نے انہیں روکا، انہیں آگے جانے کی اجازت نہیں دی۔ اس دوران دھکم دھکا بھی ہوا، اور کل ملا کر فورسز کی جانب سے، پولیس کی جانب سے انہیں پولو ویو سے آگے جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آپ تصویروں میں صاف دیکھ سکتے ہیں، ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے رکھے ہیں جس میں الگ الگ طرح کے نعرے جو ہے وہ یہاں پر لکھے گئے ہیں، اور بات یہی ہے کہ غیر مقامی لوگوں کو جموں کشمیر کے اندر ووٹنگ رائٹس جو ہے وہ نہ دیا جائے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سال 2019 تک جب جموں کشمیر کا اپنا آئین تھا، اپنا جھنڈا تھا، تب تک کسی بھی غیر ریاستی جو شخص کو جموں کشمیر کے اندر ووٹنگ رائٹ نہیں تھا، اور ووٹنگ کے لیے ضروری تھا کہ یہاں کا پشتنی باشندہ ہونا بہت امپورٹنٹ قرار دیا گیا تھا۔ لیکن جب ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہوا تو اس کے بعد ملک کے قوانین کا جو دائرہ ہے وہ جموں کشمیر تک بھی بڑھ گیا ہے، اور چیف الیکٹورل آفیسر کی جانب سے حال ہی میں کہا گیا ہے کہ پورے ملک کے اندر یہ قانون نافذ ہے کہ جس طرح سے کسی بھی اسٹیٹ کے اندر اگر کوئی فورسز کی صورت میں یا مزدور کی صورت میں یا سروسز کی صورت میں یا طالب علم کی صورت میں اگر کہیں پر رہ رہا ہے تو وہ وہاں پر ووٹ کر سکتا ہے، اور وہی سلسلہ اب سال 2019 کے بعد جموں کشمیر میں بھی ہوگا۔ تاہم پی ڈی پی کی جانب سے جو آج احتجاج کیا گیا، اس دوران کیا کچھ کہا گیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جموں کشمیر کے عوام کے حقوق کو کس طرح پامال کیا جا رہا ہے، 5 اگست 2019 میں جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے یہاں کے لوگوں کے حقوق چھیننے کا، یہاں کی پبلک ویل کو ڈائلیوٹ کرنے کا سلسلہ، اس میں ایک نیا باب انہوں نے شروع کیا ہے کل، اس میں ایڈ کیا ہے ایک نئی چیز، وہ یہ کہ جو بتا رہے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں اب جو آرڈینریلی یہاں باہر کے لوگ رہ رہے ہوں گے ان کو بھی یہاں ووٹ کا حق ملے گا۔
तो इन हालात में आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अवाम की इज्जत नफ्स, उनके तशख़्ख़ुस, उनकी आइडेंटिटी, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स, उनकी इलेक्टोरल डेमोग्राफी को चेंज करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। ये किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर के अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी लीडर ने कल इस पे मुदल्लल तरीके से बात की है और आज हम उसी बात को रिएटरेट करने के लिए यहाँ पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर कर रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जम्मू कश्मीर के आवाम को कतई बर्दाश्त नहीं है। PDP ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत करने जा रही है मंडे को। बिल्कुल, जैसा कि आपने कल महबूबा मुफ्ती साहिबा को कहते हुए सुना कि उन्होंने सजेस्ट किया था डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए और डॉक्टर फारूक साहब ने उस सजेशन को एक्सेप्ट करते हुए वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई भी है। हमें उम्मीद है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक होके, जम्मू कश्मीर के अवाम एक होके, ये जो असॉल्ट है हमारी आइडेंटिटी पे, हमारे राइट्स पे, उन पे। चले, पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी बात कर रहे थे और उनका कहना था कि महबूबा मुफ्ती ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से गुजारिश की कि कुल जमाती मीटिंग तलब की जाए क्योंकि एक संजीदा और हसास मामला है, इस पर सभी पार्टियों का एकजुट होना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर सवाल यही उठ गया कि कुछ जमातों ने जो पीएचडी का हिस्सा हैं, अगरचे वो इस कुल जमाती मीटिंग के अंदर शामिल हो जाएंगी, लेकिन जो पीएचडी का हिस्सा नहीं है, क्या वो पार्टियां अब इस झंडे के नीचे आ सकते हैं? क्या कंसेंसस बन सकता है? क्या इत्तेफाक बन सकता है? ये एक सवाल जो है अभी भी बना हुआ है। हालांकि पीएचडी के बगैर कांग्रेस की जानब से, कांग्रेस वो वाहिद जमात बन गई है जिसने हामी भर ली है कि वो इस कुल जमाती मीटिंग का हिस्सा बनेगी। लेकिन क्या सज्जाद गनी लोन की जमात इस पार्टी का हिस्सा बन सकती है? क्या सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी इस पार्टी का हिस्सा, इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं? क्या आम आदमी पार्टी इस मीटिंग का हिस्सा बन सकती है? हालांकि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सरबराहान को डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फोन करके कन्वे किया है कि एक अहम मसला है, एक संजीदा मसला है, एक हसास मसला है, इस पर एकजुट होकर एक आवाज में बात करने की जरूरत है। लेकिन क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की इस कॉल पर ये सारी जमातें लब्बैक कह सकती हैं? ये अभी भी एक मामला बना हुआ है। सईद रूफ फारूकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फारूकी, आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इनिशिएटिव लिया है, महबूबा मुफ्ती को कंसल्ट लेने के बाद कांग्रेस की जानब से हामी भर ली गई है, लेकिन सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस और उसके साथ साथ अपनी पार्टी जिसके सरबराह सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी हैं और आम आदमी पार्टी, इन तीनों जमातों की जानब से किस तरह का रुख अपनाया जा रहा है? क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज इस मीटिंग के अंदर शामिल हो जाएंगी? हालांकि सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि यह हतमी फैसला हम इतवार को लेंगे। बिल्कुल हिलाल, देखिए ये सारी सिचुएशन जो है इमर्ज होने के बाद कहीं ना कहीं सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसको लेकर, इस मामले को लेकर अपना रद्दमल पेश करें, क्योंकि अब जो सारा सब कुछ उनका पॉलिटिकल जो कैरियर है वो कहीं ना कहीं स्टेक पे आ चुका है। तो जिस तरह आपने खुद कहा कि महबूबा मुफ्ती के बाद फारूक अब्दुल्ला ने इनिशिएटिव लिया, सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान है उनको कॉल किया गया है, कांग्रेस ने हामी भर ली है, वो शामिल होंगे उस मीटिंग में जो मंडे को बुलाई गई है। मगर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, देखिए जराये से जो खबरें हमें मालूम हो रही है, जो सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी है वो तकरीबन इस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं, वो शामिल हो सकते हैं, जिस तरह में जराया खबर दे रही है। और अगर हम सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की पार्टी की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, वहां पे अभी तक कंसेंसस नहीं बन रहा है। कुछ जो जराया हमें खबर दे रहे हैं कि एक ग्रुप जो है वो कहीं ना कहीं इस हक में थे कि आप हमें मीटिंग का हिस्सा बनना चाहिए, और बाकी जो कई सीनियर लीडरान हैं वो इस हक में नहीं है। उनका ये कहना है कि जिस तरह पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उन्होंने कहा कि जो पीएचडी है ये अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके इंस्टीट्यूट ले सकते हैं, हमारी भी एक बड़ी पार्टी है, हमारे लीडरान हैं और हमारी साख्त है, हम खुद डायरेक्ट बात कर सकते हैं दिल्ली के साथ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इस मामले को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है ये जो अपनी पार्टी है वहां पे अभी इस बारे में बात चल रही है। और ऐसा लग रहा है कि जिस तरह जराया हमें बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा ग्रुप जो है वो इस हक में नहीं है कि वो इस मीटिंग में शामिल
शामिल हो सकते हैं। उनका यह कहना है कि पहले संडे तक, यानी कल के दिन, कल सैटरडे है, संडे इतवार तक इस पे क्लियरेंस जरूर आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कि जो भी ये मामला सामने आया, क्योंकि कई लीडर से जो मैंने बात की उनका कहना है कि संडे तक तो ये सारा मामला जो है क्लियर हो सकता है। इसका ये मतलब है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और अपनी तरफ से बात कर रही है, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि संडे तक तो तकरीबन क्लियरेंस आ जाएगा इसका। तो इसका ये साफ मतलब निकल रहा है हिलाल की जो अपनी पार्टी है वहां पे फिलहाल कंसेंसस नहीं बन रहा है। अगर एक ग्रुप जो है वो कह रहा है कि हम जाएंगे, अंदर कंसेंसस नहीं बन रहा है। सज्जाद गनी लोन के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वहां पर भी कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है। एक पार्टी का एक हिस्सा वो जो इस फेवर में है कि हमें जाना चाहिए और दूसरा हिस्सा इस फेवर में है कि हमें नहीं जाना चाहिए। यानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये डेमोक्रेसी रहती है कि वो इस तरह अपने ख्यालात का इजहार करें, लेकिन जब हम पीएचडी का हिस्सा देखते हैं, चाहे सीपीआईएम हो, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, एक बड़ा वजन जो है वो इस मीटिंग के अंदर शमूलियत करने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो वाहिद 3 जमातें हैं जिन्होंने आज तक 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारों का हिस्सा बने हैं। यानी एक बड़ा हिस्सा इस पार्टी में शिरकत के लिए तैयार है। बिल्कुल हिलाल, देखिए बिल्कुल हिलाल, देखिए क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, एक बड़ी पार्टी जम्मू कश्मीर की है और 1947 से ही लेकर अगर बात करें तो एक बड़ी पार्टी जिसका एक बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा कार्डर है, वो पीडीपी एक अच्छी पार्टी, एक बड़ी पार्टी जो उभर के सामने आई है। उसके साथ साथ कांग्रेस मुल्क की सतह के साथ जम्मू कश्मीर में भी अगर बात करें तो कई सालों इन्होंने यहाँ हुकूमत की है और बड़ा जो ग्रुप है वो शामिल हो चुका है, वो इकट्ठा हो चुका है। इस मामले को लेकर के हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करनी होगी कि ये जो वोटर्स रजिस्ट्रेशन है, अब आगे क्या कांग्रेस पीएचडी का हिस्सा बनेंगे, इस पे तो बात अभी नहीं हुई है और इस बारे में बात अभी कर भी नहीं सकते। मगर फिलहाल एक जो बड़ा भी सीरियस कंसर्न है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि जो वोटर्स रजिस्ट्रेशन की जा रही है उसको लेकर यहाँ की, अगर हम शॉर्ट में कहें तो यहाँ की जो 3 बड़ी पार्टियां हैं वो एकजुट हो गई है, वो एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। और अब क्या कुछ मीटिंग में के बाद कंसेंसस बनेगा, क्या कुछ बात सामने आएगी कि किस तरह इस बात को आगे ले जाना है, किस तरह इनिशिएटिव लेना है, वो सारी बातें मीटिंग में होगी। मगर फिलहाल यहाँ की जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी 3 जो पार्टियां हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद रूफ फारूकी इस हवाले से बात करने के लिए। सईद रूफ फारूकी का कहना है कि 3 बड़ी पार्टियां अगरचे एक तरफ हैं और उस कुल जमाती मीटिंग के अंदर अगरचे एक वजन कांग्रेस के आने से बढ़ गया है, लेकिन उसका यह भी मतलब नहीं कि जो अपनी पार्टी है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है कि इसका वजन कम है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि साल 2019 में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो जम्मू कश्मीर की चीजें हैं, जो जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल डायमेंशन है वो यकसर बदल गया है और अब अपनी पार्टी के अंदर भी एक ताकत आ गई है और जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी एक जान आ गई है। तो इस हवाले से इनका एक अपना रैपो है, इनका एक अपना वजन है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि अगर ये 2 पार्टियां भी उस कुल जमाती मीटिंग के अंदर जाती हैं तो एक वाइब्रेंट आवाज जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि अपनी पार्टी हो या सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, दोनों ने गैर मकामी लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर वोटिंग राइट्स देने के खिलाफ बयान दिए हैं और उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को डिसएम्पावर करने की एक कोशिश है। यहां तक कि सज्जाद गनी लोन ने कहा कि अभी भी हम 1987 के जो इलेक्शंस हुए हैं और उसमें जो कुछ इसी तरह की कोशिशें की गई हैं, अभी भी हम उससे निकल नहीं रहे हैं, अभी भी हम उसी सारी सूरत हाल से डील कर रहे हैं। तो इस वजह से जम्मू कश्मीर की तकरीबन सभी जमातों ने इस मुंह के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये आवाज एक ही सिमत में, एक ही सरबराह के नीचे से जा सकती है या कि फिर ये आवाजें अलग अलग जा सकती हैं। मंडे तक यानी सोमवार तक इस हवाले से कोई हतमी फैसला निकलकर सामने आ सकता है। अगली खबर में बात करते हैं बीमारी की, क्योंकि इससे पहले कोविड था और कोविड की वजह से इंसानों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस रखने की बात की जा रही थी। लेकिन अब लिम्पी स्किन के नाम से एक नई डिजीज जो है वो जानवरों के अंदर पैदा हो गई है। जम्मू से इसकी शुरुआत हो गई है और इस बीमारी की वजह से मुख्तलिफ जानवर इसके जद में आ गए हैं। आप इस जानवर को देख सकते हैं, ये गाय है, ये पट्टन के अंदर
आज माना जा रहा है कि 40 ऐसे सैंपल उस जानवरों के लिए गए हैं, मवेशियों के लिए गए हैं, जिन पर इस लिम्पी स्किन डिजीज के जो कि एक वायरस है उसके असरात पाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ये बीमारी भी बहुत खतरनाक बीमारी है और पहले ये बीमारी जम्मू में मवेशियों में पैदा हो गई थी, उन्हें पाई गई थी, लेकिन अब कश्मीर में पट्टन के अंदर भी ये पाई गई है। इस हवाले से आज पट्टन में एसडीएम और बीबीओ ने मज़कूरा इलाके का दौरा किया और जरूरी इकदाम उठाकर इस बीमारी के रोकथाम की कोशिश की है और मकामी लोगों को भी सजेस्ट किया गया है, उन्हें भी सलाह मशवरा दिया गया है। माना जा रहा है कि यह दरअसल जल्द की बीमारी है जिसमें जो गाय हो या कोई भी जानवर हो उसमें बुखार चढ़ता है और गाय अगर हो तो दूध कम देती है और इसमें बड़ा एहतियात जो है बरतने की जरूरत पड़ती है क्योंकि इस जानवर को आइसोलेट करना बहुत जरूरी बन जाता है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस जानवर के स्किन पर इस बीमारी के असरात पाए जाते हैं और इसका दूध, अगर ये गाय होगी तो इसका दूध ना ही इंसानों को पीना है ना ही गाय के बिछड़े को पीना है। तो इस तरह से ये काफी खतरनाक बीमारी है और इस हवाले से महकमा एनिमल हस्बेंड्री ने बाज़ाब्ता तौर पर अब मुहिम भी शुरू की है, डॉक्टर्स को एक्टिवेट रखा गया है। और इस हवाले से जो पट्टन के अंदर डॉक्टर साहिबान इस इलाके के अंदर गए, उन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमारे साथी राही निसार ने मुतल्लिका डॉक्टर और एसडीएम के साथ बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। ऑफिसर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट पट्टन। तो इस वक्त यहाँ पर हमें एक डिजीज़ आ रही है, एक वायरल डिजीज़ है जिसको हम अपनी ज़ुबान में लंपी स्किन डिजीज़ कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि पहले जो जानवर है वो उसको फीवर बहुत आता है, उसके साथ साथ वो खाना पीना छोड़ देता है और उसके साथ साथ जो नुमाया इसमें जो हम देख पाते हैं कि जो नुमाया इसमें जो चीज़ आती है वो नोड्यूल्स है, छोटे छोटे एक किस्म जो एक गुठलियाँ जैसे आ रही है इसके स्किन पर आती हैं। बस करते हैं, गुजारिश करते हैं कि चूँकि ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरल बीमारी है, तो जो जानवर है उनको अपने ही घरों में रखिए। डॉक्टर अगर हम अभी तक देखिए पट्टन एरिया की बात करें, कितने केसेस अभी तक यहाँ पे हमें डिटेक्ट हुए हैं? अभी तक जो हमारे केसेस यहाँ पर है 40 के करीब केसेस जो है हमें इस वक्त लंपी स्किन डिजीज़ के जो हमने देखे हैं तो कन्फर्म केसेस हैं। तो उन सबों को वो सारों को हमने ऑन ट्रीटमेंट लाया हुआ है, ट्रीटमेंट चल रहा है इस वक्त और उनमें से तकरीबन जो है 25 के करीब वो रिकवरी फेज में आए हुए हैं। डॉक्टर साहब जो हम यहाँ पे फेज देखा इससे पहले कोविड की जो हालात थी तो उसमें हम एडवाइस करते थे लोगों को मास्क लगाए, दूरी बनाए, वो चीज़ करिए, एहतियात बरतें। तो इसमें एहतियात करने की क्या जरूरत है जिससे ये ना फैले? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया यहाँ पर कि इसमें जो सबसे पहले जो हमें करना है, जहाँ पर भी हमें जानवर है उसको हमें, चाहे वो हेल्दी जानवर है या जो भी मुतासर हुआ है, पहले उनको बंद करना है। जब हम उनको घरों में ही रखेंगे उसके बाद जो हमारा जानवर इफेक्ट हुआ है उसको हमें जो हेल्दी जानवर है उससे अलग करना है। तो उसको अलग करने के बाद हमें वहाँ पर जो इस वक्त जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज हैं, उनको हमें कंट्रोल करना है। उसके लिए हमें मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हमें वो हिट होता है या वो मॉस्किटो किलर्स होते हैं, ताकि क्योंकि वो जो है वो वेक्टर्स की मतलब काम। लोगों को इस बीमारी के हवाले से, जिससे लंपी वायरस कहते हैं या लंपी स्किन डिजीज भी कहते हैं, उससे बचने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है और जानवरों के दरमियान भी एक फासला रखने की जरूरत है। ये महकमा एनिमल हस्बेंड्री की जो डॉक्टर साहिबान हैं उनकी जानिब से मशवरे दिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये सिर्फ यहाँ के नहीं है, अभी हमने डायरेक्टर जो एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर है उनके साथ भी बात की है, तो उन्होंने कहा कि 6 केसेस कुपवाड़ा के अंदर भी पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने कहा कि सभी भी इन जानवरों का इलाज और मुआवजा जारी है। और यहाँ पर उन्होंने कहा था, यानी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कश्मीर ने कहा था कि पट्टन के अंदर 40 नमूने लिए गए हैं, ताहम उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो डॉक्टर साहब है उनका कहना है कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं, 25 की रिकवरी भी हो गई है। तो नाज़रीन, अगली खबर में हम बात करते हैं बारामूला की, क्योंकि बारामूला के अंदर कल शाम आग के एक हौलनाक वारदात में 8 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि नौगाम कंडी बारामूला, जो कि सुल्तानपुर का एक झैली इलाका है, वहां पर 8 दुकानें नजर आतिश हो गई हैं। 10 के करीब दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। कल रात 8 बजे के करीब यह आग नमूदार हुई। करोड़ों रुपए का जो नुकसान है, करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान इस आग के वारदात में हुई है। हालांकि यहाँ ये इलाका जो है ये
बारामूला टाउन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, जिसकी वजह से फौरन से पेशतर यहाँ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वक्त पर नहीं पहुंच चुका, जिसकी वजह से मकामी लोगों और फौज की मदद से यहाँ इस आग पर किसी हद तक काबू पाई गई है। हालांकि 8 दुकानें जलकर खाकसतर हो गई हैं, लेकिन फौज और मकामी लोगों की मदद से आग को मजीद फैलने से बचाया गया है। अभी तक भी इस आग के वजूहात जो है मालूम नहीं हो सके। आग तकरीबन 8:30 बजे लगी, तकरीबन करोड़ों में नुकसान है, लाखों की बात नहीं, लाखों की बात नहीं। तो आपको कैसे पता चला यहाँ पे ये आग लगी? जब हमने यहाँ सुना कि आग लगे, हम थोड़ा इससे साइड में है तो फोन आ गया इधर से कि आग लगी। ये कुछ बंदे हमारे यहाँ थे, नमाज पे निकल रहे थे 9:15 बजे, तो इन्होंने धुआं देखा निकलता, एकदम खबर फिर फैल गई कि आग लोग जोक दर जोक जमा हो गए। यहाँ पे फायर स्टेशन है यहाँ पे? यही तो बदकिस्मत है, बार बार हुकूमत से रुजू की गई इस इलाके में एक फायर सर्विस रखी जाए, चाहे सुल्तानपुरा में रहे, चाहे नौगांव में रहे, चाहे ददबुग में रहे, मगर बदकिस्मत आज तक इस पर किसी ने कोई अमल नहीं किया। अगर यहाँ फायर सर्विस होती तो मुमकिन है कि हमारा इतना नुकसान ना होता। फायर सर्विस अमला जो है वो कल टाइम जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सरकारी दफातर हैं, जितने भी शोबाजात हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जल शक्ति डिपार्टमेंट सबसे कमज़ोर तस्वुर किया जाता है, इस एतबार से कि जितने भी प्रोजेक्ट इस महकमे ने दरदस्त लिए हैं या जिन पर काम शुरू किया है, बरसों से वो प्रोजेक्ट अभी भी नामुकम्मल है। और इस हवाले से अलग अलग इलाकों से, चाहे शुमाल हो, जनूब हो, वस्ती कश्मीर हो, हर जगह से इस तरह की शिकायतें आए रहती हैं। लाजुरा पुलवामा एक और ऐसा ही इलाका है जहां पर 12 साल पहले एक वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया गया। यहां तक कि कहा जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन यहां सिर्फ पाइपें नस्ब करना बाकी है, पाइपें लगाना बाकी है, और उसमें भी काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन पाइपें नहीं लग रही हैं। माना जा रहा है कि जो मुतलका ठेकेदार है उन्होंने यहां पाइपें लाई हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ने उसे अप्रूव नहीं किया है, क्योंकि शायद पाइपों की जो मयार है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। नतीजा ये है कि आम लोग इसका नुकसान भुगत रहे हैं। इस परेशानी से मकामी लोग परेशान हैं और उनका कहना है कि सरकार घर घर नल से जल के दावे तो आए रोज करती रहती है, बड़े बुलंदबाग नारे भी लगाए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। मकामी लोग क्या कुछ कहते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनिए। अब वाटर सप्लाई स्कीम लोजर खांजपुर लोजर खतर आई बनाना वाटर सप्लाई स्कीम। यह काम चलान वंदस तम कंटिन्यू चलान। अत पदकिन वुचान मुलाजिम क्वार्टर बनित वेल तन कम्प्लीट, यह कम्प्लीट गोमुत हरकन रिजर्वायर सह कम्प्लीट। अम पे वो पाइप फिटिंग कर पाइप तम हमसाय सस आंगनस मज, मगर तथ क्या इंस्पेक्शन पेंडिंग क्या वन तथ गो इंस्पेक्शन, मगर तम हसा कर तमो रिजेक्ट पाइप, तम गवर्नमेंट अप्रूवड तम कहें, मगर तमिक मतलब गो नी वन दिन तमिक सजा दिन तम 2 रेतन 4 रेतन रू 6 रेतन मसल अटकित इथे कन गो नमिस पास वन मज लगित कि यह गो कुन पे पास गन। असल मामला यह पाइप पास कर्म इंस्पेक्शन कर वालों कहें। अत गो आला हुकाम तम एक्शन नीन जल्द अज जल्द यह स्कीम गन चालू। तो नाज़रीन, ये था आज का यानी अभी तक का उर्दू खबरनामा। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।